पढ़ाई करने से ज़्यादा जो टीचर होता है अपनी लाइफ में वो होता है एक्सपीरियंस। जब हमारा स्प्रिंग टाइट होता है ना तभी इंसान ज़्यादा बाउंस बैक होता है। एक कंपनी चल रही है 40 साल टिकना किसी भी धंधे में वो अपने आप में एक लेगेसी है। And that is where Warbe is also standing today. Ever since the beginning of the company, our culture should be as we want, and whoever is coming in, they have to adopt that culture. They don't see future growing with me. They feel that threat. तो हमारे यहाँ पे भी स्ट्राइक हुई थी जब पहले, एंड देयर वाज स्टिल लॉट ऑफ प्रेशर्स. वी वर किडनैप्ड, वी वर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, एंड स्टिल वी कुड एंश्योर दैट डिलीवरी टू द कस्टमर. कि ये इंडियन है, ये इंडियन तू ना है. सस्ता बना सकता है, तू कुछ नया नहीं कर सकता। मेरे लाइफ का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है बॉस, अगर आप 10 रिस्क लोगे 7 रिस्क आपके शायद फेल गए। तो इस तरीके से वो बैरियर्स को तोड़ के न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, दैट वाज समथिंग विच अ न्यू कलर वी हैड टू बिल्ड इन. नेक्स्ट 10 साल में वॉरवे वुड बी इंडियाज नंबर 1 कंपनी. Today, the theme for panel discussion is capacity building mindset. We are very happy to have you, and I would love to have Sachit sir commence forward with the panel discussion. Thank you so much, everyone. थैंक यू डियर। एंड सर, एनरिच होने से पहले 2010 में मेरे ख्याल से हमने चालू किया, राइट? बट तब तक आप सुज़लॉन में कई साल आपने जॉब किया, उससे पहले भी मेरे ख्याल से आप जॉब में थे, फाइनेंस एंड मार्केटिंग आपका एरिया रहा। मतलब क्यों कोई आदमी स्टेबल जॉब छोड़कर, अच्छी सैलरी छोड़कर बिजनेस में आना चाहेगा? व्हाट पुश्ड यू? So actually, I came to Pune in 2003 to do my MBA, and since 2003 to 2005 I did my MBA and I joined Suzlon. तो वो चूल तो बचपन से था ही कि कुछ बिजनेस करना है, and that is what it was. After doing the job for 5 years with Suzlon, I realized that there is a huge potential in the renewable industry in India, and which is yet to be untapped. And that time, when we thought of starting Enrich, it was that the country's commission capacity was only 18 megawatt. And we saw a lot of huge potential in starting with solar parks, like the way Suzlon was doing wind parks. So there was no company in country that time which was doing solar parks. So we started off this thought, and then I with another colleague of mine, and we thought of starting it. And that is where the answer lies. That why you do it, you don't know. You have to have that gut from inside that there's a big problem there in the market, and I can give a solution to this problem. And if you can really give a solution to this problem, then you can come out with some good business idea which can create the good ecosystem around. You came into business because you saw a problem and you saw potential. Yeah. अनुज भाई, आपका रास्ता तो आसान था, साफ था, ऐसा लोगों को लगता है। हाउ डिफरेंट इट वाज? इनके केस में क्या था, कम से कम ये डिसीजन मेकर थे डे 0 पर, आपको वो जगह कमाने में साल लग गए। So being a second generation in the family is always comes with legacy, but always comes with little bit of baggage too, right? Where आपको चीज़ों को undo करनी पड़ती है, delete मारना पड़ता है, and you have to make your organization ready for future aspects. And एक organization में rhythm होती है, वो rhythm को break करना है और फिर आपको new रंग भरना है, उसमें न्यू कलर्स भरने हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग, एंड दैट इज़ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन पीपल ऑल्सो फेस दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दैट इज़ वेयर यू हैव टू बिकम अ लीडर टू make them understand why it is required, for what purpose it is required, and for what vision we are looking for. So that is where it was a tough time for me, because I had to curate my own co-leadership team. I had to move a customer's image, change customers' image, make organization into paradigm shift, and with all these things it was a little challenging, but we have been overcoming, and now we have that kind of confidence to deliver to the market as well as. बस जस्ट सीइंग दैट सर एक जॉब से इसमें एंटर करते हैं, आप एक फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हो, ठीक है? आप बिजनेस में थे लेकिन अलग बिजनेस में थे, और उस बिजनेस को लेट गो करके एक नई एरिया में एंटर करना, और उसके बीच में भी एक 7 साल का ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है? तो यू हैव अ वेरी डिफरेंट इंटरेस्टिंग रूट टू एंटर वेयर यू आर। लाइफ में कभी कभी धक्का भी मिल जाता है इंसान के, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैं तो ये सीखता हूँ कि ये देखता हूँ कि पढ़ाई करने से ज़्यादा जो टीचर होता है अपनी लाइफ में वो होता है एक्सपीरियंस। जब हमारा स्प्रिंग टाइट होता है ना तभी इंसान ज़्यादा बाउंस बैक होता है। तो मेरे लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने मेरे अंदर वो जुनून जगाया कि कुछ करना है। इनिशियली तो खुद की आइडेंटिटी, खुद का वजूद ये हो जाता है, बट
टाइम इज़ मैच्योरिटी, तो टाइम अनुसार हम लर्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं. एवरी 3 years विजन कीप ऑन चेंजिंग. द इंसेप्शन वॉज ऐसे ही था कि लाइफ में कुछ स्प्रिंग टाइट हुए थे, उसके लिए हम आगे आ गए. तो तीनों का एक मोटिवेशन था, तीनों एक सोच से एंटर कर रहे थे. एनरिच की स्टोरी स्पीड है. आप लगभग 50% CAGR से ग्रो कर रहे हो, जब से चालू हुए हो तब से. बड़ा होगा, कभी घटा नहीं है, ठीक है. और आज भी हाथ में जितना काम है, उतना जितना पिछले इतने सालों में किया है, उतना अगले 1-2 साल में डिलीवर करना है. इसे ब्रेकनेक स्पीड जिसे हम लिटरली कहते हैं ना, वो है. इस तरह की स्पीड का मतलब है कि टीम भी उतनी ही तेज़ी से ग्रो हुई होगी. तो टिपिकली क्या होता है, जब हम ट्रेडिशनली ग्रो करते हैं तो कल्चर अपना सेट होता है और नए लोग उस कल्चर में ढलते हैं. लोगों के आने की स्पीड कम होती है, पुराने लोग ज़्यादा होते हैं. ये ट्रांजिशन अपने आप होता है नेचुरली. बट जिस स्पीड से आप बात कर रहे हो, 50% CAGR ईयर ऑन ईयर, आप बात कर रहे हो कि हर साल नए लोग ज़्यादा है, पुराने लोग कम है. तो किसके कल्चर में कौन ढल रहा है और किस तरह से कंपनी को आप बांध के रख पाए? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सचित भाई. एंड आज का जो टॉपिक है उसमें एक मेजर की फैक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है वो कल्चर होता है. आप अगर कंपनी में कल्चर आपका जो है वो इंटैक्ट है, बिकॉज आई टेल यू अराउंड 2-3 years बैक वी वर हैविंग एट्रिशन रेट ऑफ ऑलमोस्ट 38%. तो मतलब हर 2 साल में कंपनी बदल जा रही थी. बट वी गॉट इट अरेस्टेड टू 17%. एंड इन आर इंडस्ट्री, बिकॉज वी आर अ फर्म विद वेरी निश इंडस्ट्री, तो क्या होता है कि काफ़ी चर्नआउट चालू रहता है. बट वी हैव इंश्योर्ड दैट एवर सिंस द बिगनिंग ऑफ द कंपनी आर कल्चर शुड बी एज वी वॉन्ट. एंड whosoever is coming in, they have to adopt that culture. आप किसी मंदिर में जाते हैं उसके नियम है, आप किसी घर में जाते हैं उसके नियम है, तो वो आपको अडॉप्ट करना है. कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि गलत हायरिंग हो जाती है, गलत लोग जुड़ जाते हैं, या तो वो खुद निकल जाते हैं, अदरवाइज यू हैव टू टेक अ कॉल. क्योंकि द स्पीड विच वी आर ग्रोइंग, आई मीन 50% CAGR, आई जस्ट कोट एन एग्जाम्पल. last year what we did the order book, this year we did a 4x order book of that in the current financial year. Now we were sitting with the entire leadership team and we were doing a budgeting exercise for the next financial year. So everyone thought that we did 4x, this time again we'll do 3x, 4x, that should be good. So this year order book was around 3,000 crore, next year it should be around 8,000 crore, and that was very good. But we gave a different perspective, and that is where Warbay is also standing today. Warbay should not see what they want to do in the next financial year. Warbay should see how much % of the market they should capture next year. तो हमारी इंडस्ट्री का मार्केट हम लोग कैप्चर कर रहे हैं. इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ नंबर्स, हमारी इंडस्ट्री का मार्केट कैप्चर करेंगे हार्डली 4-5%. तो अगर आप सोचेंगे कि बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है 8,000 करोड़ ऑर्डर बुक, बट हमारे लिए वो बहुत मिनिस्कुअल है. तो वॉर्बे को भी वही देखना चाहिए कि क्या कर सकता है एग्जैक्टली. आपका जो फोकल पॉइंट होना चाहिए वो मार्केट लीडरशिप को ड्राइव करना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर ग्रोइंग इन नंबर्स 2x 3x 4x, वो नहीं होना चाहिए. एंड उसके लिए जो ज़रूरी होता है वो कल्चर है, क्योंकि अगर आपका कल्चर सही रहेगा तो जो लोग आएंगे, जैसे एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. हम लोग क्या करते हैं, फाउंडर्स लोग एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं अरे तुम रिस्क लो, ये करो वो करो. बट कोई एम्प्लॉय अगर रिस्क ले लेता है तो हम लोग उसको, फिर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हम उसको इमीडिएटली फायर कर देते हैं या गुस्सा निकाल देते हैं, कर देना चाहिए. हमको वो एक माहौल बना के रखना पड़ेगा दैट पीपल आर वेरी सिक्योर कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना अलाउड है. मैंने कुछ अगर गलत किया तो भी अलाउड है, मेरी बात को समझा जाएगा, मेरी गलती को समझा जाएगा. और फिर जब हम कल्चर को सेट करेंगे तो लोग अपने आप आपके साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, दे विल ट्राई न्यू थिंग्स, एंड दैट इज़ वेयर द न्यू आइडियाज विल कम फ्रॉम. तो कल्चर आपका इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितने भी लोग आ जाएँ चले जाएँ. दिस शुड बी वन थिंग दैट शुड बी वेरी इंटैक्ट, बिकॉज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कल्चर इज़ वन थिंग, अनदर वन इज़ योर क्रेडिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज़ कैपेसिटी. एंड कल्चर इज एट द फोकस ऑफ ऑल दिस थिंग्स. कैपेसिटी में क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब दैट यू आर एडिंग न्यू रिसोर्सेज. एक्चुअली दैट इज़ नॉट कैपेसिटी बिल्डिंग. आज टीम इतनी बड़ी है, इनको अगर हमको बोला जाए कि हमको 4x करना है तो हमको लगता है कि मैन पावर भी 2x कर देनी चाहिए. दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्शन दैट वी फाउंडर्स कैरी. द कंसेप्शन शुड बी कि ये टीम से इनका जो स्किल का पोटेंशियल है इसको कितना ज़्यादा मैं ग्रो कर सकूं और उसके बाद में मैं क्या ग्रो कर सकता हूं वो देखना चाहिए. ऑफ कोर्स आपको ऑगमेंटेशन ऑफ मैन पावर करना पड़ेगा, बट वो एक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग है. इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. इंट्रोड्यूसिंग कलर्स, ठीक है, रिदम ब्रेक करना, कलर इंट्रोड्यूस करना. थोड़ा सा एलोबरेट करोगे क्या रिदम ब्रेक किया और किस तरह से कलर इंट्रोड्यूस करे?
एक organization, so our organization is almost 40 years plus, and being an MSME, coming from automobile background, there's a drastic change, drastic transition in the market and customers expectation. So उसके लिए जो चीज़ें तैयार करनी थी वो एक पहले एक प्रोडक्शन शॉप फ्लोर था, तो वो इतना छोटी छोटी चीज़ों पे चल जाता था काम. बट आज जिस तरीके की फैसिलिटी है और जिस तरीके का कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है, उसको बिल्ड करने के लिए ऑब्वियसली न्यू माइंडसेट लगता है, न्यू कल्चर लगता है, एंड ग्रोइंग कल्चर लगता है. यू हैव टू ऑलवेज try to keep your team motivated, and एक organization में with the set of people you have that kind of culture which could be not motivating, could be not aspirational नहीं रहता है, improving करने की thought process नहीं रहती है. तो इस तरीके से वो barriers को तोड़ के न्यू कलर्स ऐड करना, न्यू एस्पिरेशंस लाना, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, दैट वाज समथिंग विच अ न्यू कलर वी हैड टू बिल्ट इन. And to do that, we adopted a certain kind of culture where we tried to always bring that kind of improvement. Improve was our core value, is our core value. So adopting technology is our core value. Being resilient is our core value. With this, I learned Toyota Production System to level 2, and with this, we always try to bring that kind of return on capital employed. With that perspective, we try to ensure that there is no rework, reduce wastage, bring more automation, so that we can deliver quality product to the customer and zero defects to the customer. So in this scenario, the culture of zero defects, zero delays, zero accidents, zero safety, all these areas where it was a whole change in the organization, and people used to start ignoring, right? So when you see that kind of ignorance in the organization, होते हुए भी दिख रहा है सामने पर नहीं किया जा रहा है, right? तो उसको अवेयर कराना, उसको चीज़ों को चेंज कराना, गोल सेट करना, टाइम बाउंड सेट करना, and who's responsible for it, this itself become the whole change in the organization. And now it became more goal oriented and more time bound oriented. So with this, we could achieve our goals. Now being in Premier's group, our goal is that in the next 5 years जो हमारा top line रहेगा वो हमारा bottom line होना चाहिए. So that kind of aspiration we are looking at, and with capacity building, in addition to it, what I'll say is जितने constraints है, हम लोग ने constraints को identify किए, और वो कंस्ट्रेंट्स को हमने बायो एनालिसिस करके रूट कॉज निकाल के वो कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व किया विथ ऑटोमेशन, विथ रोबोटिक्स, विथ माइंडसेट ऑफ क्वालिटी इन ऑल द एरियाज, राइट? एंड दैट इज वेयर द होल कल्चर चेंज्ड इनटू परफॉर्मेंस ड्रिवन कंपनी. अब दोनों की जर्नी बहुत अलग फिर भी बहुत साथ में है. अंकित भाई को मोमेंटम चल रहा है, उसको ब्रेक नहीं होने देना है, बट उसके बाद भी माइंड शिफ्ट करना है कि बॉस इसमें खुश मत हो, कुछ नया है, फिर कुछ बड़ा है, और उसको समझाना कि बॉस ये इनफ नहीं है, देयर इज समथिंग बिगर आउट देयर, दैट्स योर फाइट. और अनुज भाई की बैटल अलग है कि एक कंपनी चल रही है, 40 साल टिकना किसी भी धंधे में वो अपने आप में एक लेगेसी है. 40 साल, ठीक है. सडन कस्टमर है जो 30 साल, 40 साल, 20 साल से आपके साथ है, ठीक है. टीम है जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से आपके साथ है. उसकी पहली जॉब आपके साथ थी और अभी वो रिटायर होने में 1 साल बचा है और उसने इधर उधर देखा नहीं है, ठीक है. देयर आर 50% स्टाफ वर्किंग जिन्होंने कभी CV नहीं बनाया है, ठीक है. राइट 50% टीम मेंबर होंगे जिन्होंने कभी लाइफ में पोर्टल ऑपरेट नहीं किया, naukri.com, फलाना ढिमकाना, तुम लोग को पता है ना वो सब. हाँ तो 50% लोग, और उनको बताना कि बॉस तुम सब गलत ट्रैक पर हो, अभी ट्रैक ही चेंज हो चुका है, जिसको तुम सक्सेस कह रहे थे, जिसको तुम सही समझ रहे थे, अब वो सब कुछ बदल चुका है. फ्रॉम बिल्ड टू प्रिंट, इफ यू कैन एलॉबरेट ऑन दैट. यस, या. टू यू नो डिजाइनिंग इन हाउस. यस, ये एक पूरा माइंड शिफ्ट चेंज है. सो विद दिस, इन एडिशन टू दैट, हम लोग पहले जो थे कस्टमर के ड्राइंग्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते थे, एंड अभी पिछले 4 साल से हम लोग ने हमारी डिज़ाइन प्रोडक्ट्स बनाना चालू किया है. सो कस्टमर हमें सिर्फ परफॉर्मेंस देता है, क्या परफॉर्मेंस चाहिए, एंड ऑन दैट वी डिज़ाइन अवर प्रोडक्ट. सो वी आर नाउ प्रोप्राइटरी डिज़ाइंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सो हम डिज़ाइन से लेके वारंटी तक, मतलब आपके वी आर बीइंग इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपके गाड़ी में जो भी सस्पेंशन रिलेटेड इशू आएगा, मैं आपके घर पे आके सॉल्व करके, रिप्लेस करके, कंप्लीट करके देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ OEM.
सो टिल वारंटी विच इज़ कॉल्ड एज फुल सर्विस सप्लायर टिल द एंड ऑफ लाइफ। तो वहाँ तक हम लोग ने चेंज किया। तो एक इमेज कस्टमर के पास, हमारे इतने सालों से काम कर रहे हैं तो कस्टमर के पास भी एक इमेज है कंपनी को लेते हुए, उसको चेंज करना, इमेज को बताना। कि एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं टाटा मोटर्स गया और मैं उसको बोल रहा हूँ कि जो वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं वो मैं यहाँ पे लोकलाइज करके दूंगा, तो वो मेरे को बोलता था सुबह क्या किसकी शक्ल देख के आया, राइट? यू कैन नॉट डू दिस, यू आर नॉट, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंड्स। टिपिकल है ना कि ये इंडियन है, ये इंडियन तू ना है। सस्ता बना सकता है, हाँ। तू कुछ नया नहीं कर सकता, ठीक है? ये सब काम जर्मन्स का है, आजकल चाइनीज का है। तू सिर्फ कॉपी कर, जो डिजाइन में देता हूँ उसको सस्ते में बना कर दे, दिमाग मत वापर। Yes, so we changed that image in last 3 years totally, and we've been successful in that. सो दैट्स ए माइंड शिफ्ट, ठीक है? सर आपके प्रॉब्लम थोड़ी अलग ही है, मतलब ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आप कैसे अपने आप को इतनी मोहमाया से, आपकी खास करके इंडस्ट्री की मोहमाया से अपने आप को बचा पाए हो? इसकी शुरुआत मैं से करूँगा पहले तो कि वॉर्बे कंपनी मेरी खुद की कंपनी है, मैं ये समझता हूँ। आप अपने लिए क्लैप कीजिए बिकॉज यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल सिटिंग ओवर हियर इन अ बेस्ट कंपनी। सो मैं मेरी जर्नी और चेतन जी की जर्नी बहुत सारी को रिलेट होती है। मैं उसमें ये देखता हूँ चेतन जी ऑलवेज ही इज़ हंग्री फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन फॉर द टीम। वो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मेरे पास कभी भी बात नहीं करने आते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट में क्या करें। वो अपने बिजनेस में स्ट्रांग है, मैं समझता हूँ। हमारी जब भी डिस्कशन होती है तो यही डिस्कशन होती है कि मेरी टीम के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा है कि वॉर्बे कंपनी इज़ अ यूनिक कंपनी। सेम वे वेयर मैं भी चेतन जी से सीखता हूँ कि लेगेसी को उस तरीके से यूनिक बनाने की। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू हैव एंटर टू अ राइट कंपनी एट अ राइट टाइम एट द राइट एज। जो हमारा 25 to 45 जो पीक पीरियड रहता है, मेजर ऑफ देम आर देयर विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो चेतन जी ने आपको एक यूनिकनेस की तरफ आपको लेके आया है। नाउ योर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट वी ग्रो ऑन अ डिफरेंट लेवल। मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि इनिशियली तो हम लोगों का खुद का सर्वाइवल था, हम खुद के लिए सोचते थे। राइट नाउ एज अ टीम लेगेसी, एज अ टीम वॉर्बे, वी ऑलवेज आर थिंकिंग कि हम एक यूनिकनेस कैसे लेके आए। आप बदलाव कर रहे हो बिकॉज आपने एक फोकस रखा है और उस फोकस की रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से यू आर चेंजिंग और यू आर फोर्स टू चेंज, ठीक है? आपने एंटर किया और आप ही वो चेंज एजेंट थे, ठीक है? तो आपके केस में 2017 में आपने दिलीप भाई को खोया था, जो पहले सपोर्ट सिस्टम था, उसके अचानक जाने से ऑल ऑफ ए सडन काफ़ी बदलाव हुआ। हाउ डू यू कोप अप एंड हाउ यू केम आउट ऑफ इट बेटर? देखो लाइफ में मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग अपना दबता ही है हर चीज़ों में। मेरे लाइफ में दिलीप सर गुजर जाने के बाद मेरे लिए वो बहुत इट वॉज मोमेंट कि मैं टूट सकता था, बट मैंने बोला नहीं, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं ये कर सकता हूँ एथिकली, उसकी फैमिली का ध्यान रख सकता हूँ, बट मैंने बोला अभी नरेश दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू हैव टू ग्रो दिस एबिलिटी, टेक बोल्ड स्टेप्स टुवर्ड्स द मेकिंग रिलेशन इन कॉर्पोरेशन, ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल, एंड आई थिंक दैट मेड बेटर इम्पैक्ट देन द अर्लियर। कभी कभी हम अपनी काबिलियत को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो लाइफ में ना कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकता। रिस्क लो, वर्स्ट केस क्या होगा, हम उसमें सक्सीड नहीं होंगे। मेरे लाइफ का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है बॉस, अगर आप 10 रिस्क लोगे, 7 रिस्क आपके शायद फेल जाए, बट वो 3 रिस्क जो आपके सक्सेस जाएंगे वो 300 गुना ऊपर लेके जाएंगे। तो यही मंत्र है लाइफ का कि रिस्क लेते रहिए। वो रिस्क से खोना क्या है, आपके पास बाकी इतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए, इतनी बड़ी टीम बैठी है। आपके कुछ डिसीजन मैं समझना चाहूँगा। वो एक 800 यूनिट का एक प्रोजेक्ट था, यू बैकड आउट ऑफ इट, ठीक है? एक तरफ रिस्क लेने की हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहाँ पर रुकना है, कहाँ रिस्क नहीं लेना है, वो डिफ्रेंशिएशन कैसे है? आप क्यों बैकआउट किया और क्या सोच के? सिंपल फिलोसफी है, कल की मैच्योरिटी को आज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। कभी कभी लाइफ में जैसे चैलेंजेस आएंगे, तो वो जब पीरियड आया था, वो पीरियड में हमारा स्प्रिंग दबा था। गॉड वाज ग्रेट कि हमारी बुकिंग इतनी अच्छी हो गई कि वो 800 फ्लैट की जगह पे हमने 8000 फ्लैट के प्लॉट ले लिए।
सो ये स्प्रिंग दबना ज़रूरी है. मैं तो सबको प्रे करूँगा कि सबकी लाइफ में ऐसा स्प्रिंग दबना चाहिए और उसमें से इंसान ने ग्रो होना चाहिए, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए. इनकम टैक्स सर्च के 10 दिन के बाद मेरे डैड गुजर गए. मैंने मेरे पार्टनर्स को कॉल किया, ये गम मेरा है, मैं इसको ओवरकम करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता, बट मेरी कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस कंपनी में ये 120 लोगों की कंपनी मेरी अकेली की नहीं है, इनका वजूद नहीं रुकना चाहिए. ये अगर जज्बा है, अगर वॉरबे के अंदर मैं देख रहा भी हूँ, और अगर ये हम पॉजिटिवली रखेंगे, आपकी फैमिली का टेक केयर करने के लिए चेतन भाई एंड टीम इज़ वेटिंग फॉर यू. यू हैव टू जस्ट क्रिएट मिरेकल्स, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. स्प्रिंग अभी तक कभी दबा है ये पिछली जर्नी में, या अभी तक इट्स ऑल मिरेकल्स? नहीं, मतलब बहुत बार दबा है. और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि वो कहावत है कि सर मुंडाते ही ओले गिर गए. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन 2011, अनफॉर्चुनेटली माय फादर गॉट डिटेक्टेड विद कैंसर, एंड उससे 6-8 महीने पहले आई गॉट मैरिड. तो आई टोल्ड माय वाइफ बिफोर मैरिज ओनली कि मैं बहुत ज़्यादा दिन शायद जॉब नहीं कर पाऊँगा. आई फील सफोकेटेड, आई हैव टू डू बिजनेस एंड आई डोंट नो वेयर आई विल लीड टू, बट ये मेरा एक थॉट है. तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड इंटरेक्शन में मैंने उनको बता दिया था, एंड शी वॉज वेरी सपोर्टिव, एंड उन्होंने बोला कि नहीं आप आगे बढ़ो, आप कर लेना. बट वी नेवर थॉट ऑफ के एंड आई स्टार्ट बिजनेस, मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा. फिर एक टाइम आया कि डॉक्टर ने बोला कि उनकी जो भी इच्छा है पूरी कर लीजिए. तो आई हैड अ यंगर सिस्टर, उसकी शादी करना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सब 2011 से 14 के बीच में चल रहा था. 2018-19 कोविड केम, हमारी इंडस्ट्री की 80% EPC कंपनियाँ बंद हो गई, बट वी वर द ओनली कंपनी जिसने काफ़ी कुछ चीज़ें हमने अलग तरीके से ओवरकम की. एंड इनफैक्ट वो पूरे दशक के अगर मैं देखूँ आज भी हिस्ट्री में जाके, तो वी डिड द वन ऑफ द बेस्ट EBITDA दैट टाइम, because we immediately changed our business model from just not working on sites to a service oriented business model, जहाँ पे हमारी टीम वर्क फ्रॉम होम करके भी डिज़ाइनिंग कर सकती है, एंड उसके रेवेन्यू के थ्रू हम स्टार्ट किए. प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी. मेरा एक सिंपल लाइफ का थॉट है, प्रॉब्लम आती है ना, आपको रात तक ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन सी बकेट की प्रॉब्लम है. कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है वो लॉन्ग टर्म रहने ही वाली है, तो उसको आप इमीडिएटली चाहोगे कि मैं कल सुबह एड्रेस कर दूंगा, आप परेशान होते रहोगे. कुछ प्रॉब्लम होती है वो मिड टर्म रहने वाली है, और कुछ प्रॉब्लम होती है शॉर्ट टर्म रहने वाली है. अगर आपने आपकी बकेट बना रखी है ना, तो उसको प्रॉब्लम को उस बकेट में डाल दो, अगले दिन सुबह आप फ्रेश उठोगे नई प्रॉब्लम झेलने के लिए. आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जर्नी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं. फॉर्चुनेटली फॉर यू, लीडरशिप सपोर्ट आपको जल्दी मिल गया, बट टीम का सपोर्ट लेने में या उनको टर्न अराउंड करने में यू हैड लॉट ऑफ फाइट बैक. ठीक है, बिकॉज हम फेलियर को ठीक करते हैं ना तो आसान होता है लाइफ. आप सक्सेस को ठीक करना चाहते हो ना, वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि आपको वो सक्सेस आगे जाके फेलियर दिख रही थी, लेकिन इनको तो आज सक्सेस दिख ही रही थी और पीछे सक्सेस दिख ही रही थी. ठीक है, वो माइंड शिफ्ट चेंज करने में इट टुक सम टाइम. वी आर ऑन ट्रैक टुडे, बट वो जो फेस था उस टाइम ऐसा नहीं लगा कि छोड़ दूं या क्या करूं, बिकॉज आप देख पा रहे हो, वो नहीं देख पा रहे, और जिनके साथ उठे बड़े हैं और वो लॉयल है, उनके साथ लड़ना कैसा रहा? ऑलवेज डिफ़िकल्ट टाइम, बट कुछ डिसीजंस हमें लेने पड़े बहुत स्ट्रांगली उस टाइम पे, क्योंकि इट बिकेम जैसे कुछ लोग तो हमारे घर के थे, एंड सब कुछ एकदम पाल पोस के लोग ने कंपनी को बड़ा किया. मेरा चाइल्डहुड उनके साथ था, तो कंपनी में आते जाते रहते थे, घर में जाते थे. बट एट द एंड ऑफ द डे जब चीज़ें इवैल्यूएट की और कंपनी जिस हिसाब से आगे ग्रो करने चाह रही थी, कुछ लोगों को हमने वी कुड नॉट से इट, बट हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था बोलने के लिए, टू मूव आउट. एंड एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगा कि क्लियर करना चाहिए, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कोप अप व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग. एंड उस तरीके से एक वो हार्ड टाइम था कि हमें बोलना है, एंड वी वांट टू चेंज द होल पर्सपेक्टिव. एंड उसके बाद टीम का एक्सेप्टेंस आना मेरे लिए वाज अगेन अ चैलेंजिंग टाइम. कभी मोटिवेशन होता है, एंड देन उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू they accept it, because decisions मेरे से आ रहे हैं, and decisions वो लेने में उनको acceptance नहीं होती है, and there are certain ways where they don't see future growing with me, they feel that threat. तो वो सब areas को overcome करते करते then it took time, and then eventually now today it is there that कि the whole team, the core team is with me. जब हम लोग
प्रोडक्ट डिज़ाइंस करने चालू किए खुद से, तब मैंने जब सीनियर लीडरशिप लेके आई और उस टाइम पे भी उस लेवल के लोग लेके आना, जोड़ना एंड सस्टेन रखना, एंड वो एक ओल्ड और न्यू के बीच में जो एक बैरियर आ जाता है उसको ब्रेक करना, तो दिस वॉज ऑलवेज बीइंग चैलेंजिंग एंड इट ऑलवेज मेक मी थॉट कि और क्या बेटर कर सकते हैं, क्या और दूसरे सॉल्यूशंस और मेथड्स निकाल सकते हैं जो पीपल कम टुगेदर एंड रियली स्टार्ट वर्किंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट कभी भी चैलेंजिंग के हिसाब से, और सर ने जैसे बोला जो स्प्रिंग है उसके हिसाब से कंपनी वॉज ऑलवेज बीन ऑन रेजिलेंट। तो हमारे यहाँ पे भी स्ट्राइक हुई थी जब पहले, एंड 20-25 ईयर्स बैक होगो 2000s के टाइम पे, उस टाइम पे भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, और उस टाइम पे भी हम लोग ने देखा कि कस्टमर की लाइन नहीं रुकनी चाहिए, पेमेंट्स शुड गो एवरीवेयर, प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, देयर वाज स्टिल लॉट ऑफ प्रेशर्स, वी वर किडनैप्ड, वी वर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल वी कुड एंश्योर दैट डिलीवरी टू द कस्टमर, एंड विद दोज एरियाज टिल नाउ दैट वैल्यू इज स्टिल देयर, एंड तो बॉटम रूट्स को कभी छोड़ा नहीं हमने, कितने भी लोग आए कितने भी जाए, पर जो वैल्यूज़ है, जो प्रिंसिपल्स है, उसको हम लोग ने कंसिस्टेंट रखा, एंड वी आर स्टिल एबल टू ओवरकम दोज चैलेंजेस मोर बेटर। डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़े तो लिए। हाँ, ठीक है, देखो कॉन्टेक्स्ट में ना चीज़ें चेंज हो जाती है। फॉर देम डिफिकल्ट डिसीजन लेना वाकई में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि 25-30 साल पुराना वाला आदमी है, ये वो आदमी है जिसने उस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं किया। जब पूरी यूनियन एक तरफ हो गई, इन्होंने आपका साथ दिया, ये आपके लिए लड़े, आपके लिए उन्होंने अपने लोगों से झगड़ा किया, और आज वही आदमी लॉयल है लेकिन बॉटलनेक है, और उसके ऊपर डिसीजन लेना जान जाती है, दैट्स समथिंग। ठीक है, फॉर यू पेइंग हिम राइट अप फ्रंट, एंड वो नहीं करता तो हाथ खींचना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Yeah, I mean, I'll just build on the context what you are saying. He rightly mentioned, right person at the right seat ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड उसके लिए आपको बहुत बार ऐसा होता है कि आपको थोड़े कड़क स्टेप्स लेने पड़ते हैं। दिस विल कम टू कल्चर, कि अगर आप कल्चर में ऐसा एक हमारा ये एथॉस होना चाहिए, इनका वाइव्स में है ये बिजनेस एथॉस, वो एथॉस होना चाहिए हमारा कि culture should be such that people who see challenge and are not told to overcome them, then that's the right culture of the capacity building. बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि कल्चर अगर आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम है, बट आप वेट करोगे कोई आगे जाके बोलेगा और फिर होगा, तो वो नहीं होगा। अगर आप देयर आर लीडर्स यहाँ पे भी होंगे बहुत सारे जो उसको ओवरकम करते हैं, तो दे शुड बी एनकरेज्ड, दैट शुड बी द कल्चर। नरेश भाई, जस्ट टू एक्सप्लोर ऑन द सेम एस्पेक्ट, वो बैलेंस जिसे हम कह रहे हैं, आपने जैसे कहा ना, वो बैलेंस होना चाहिए कि आपको कंपनी भी देखनी है, बिजनेस भी देखना है, लेकिन सिर्फ बिजनेस नहीं देखना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये भी नहीं देखना है। अगर सिर्फ ये देखोगे तो धंधा आ जाएगा, एक्चुअली सबका नुकसान हो जाएगा, और सिर्फ धंधा देखोगे तो भी धंधा नहीं देख पाओगे, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो ये जो फाइन बैलेंस है, नरेश भाई मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका ये वाला एस्पेक्ट मैंने सुना है, मैं उसको भी सुनना चाहूँगा अभी, बट आप इस तरफ भी हो क्या बिजनेस साइड में? क्योंकि जितना आपने कहा वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मैं मेरे एस्टिमेशन हेड के साथ बैठा था, तो मैंने ऐसे ही उससे बात किया कि उसका नाम चिंतामणि, आई थिंक सम पीपल माइट नो अबाउट हिम। तो मैं बोला, चिंतामणि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बोले, सर मेरे फादर मदर दे हैं, वो एज ओल्ड है, अगर उनकी कुछ है, भगवान न करके जैसे सर ने बताया, उनको कैंसर या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसका टेक केयर कौन करेगा? तो वो ऐसे हमारी बात 1 घंटा हुई, बट उस 1 घंटे में मेरे माइंड में एक ही टॉपिक मिला कि ये एक चिंतामणि नहीं है, मेरे कंपनी में 130 लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो चीज़ के लिए मैं पूरा 1 हफ्ता मैंने डिस्कस किया, मैंने सारे इंडस्ट्रीज़ में क्या प्रैक्टिस हो रहे हैं वो देख लिया। तो मैं ये नहीं सोच सकता मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं मेरे प्रॉफिट से तो पक्का कर सकता हूँ। तो मैंने कंपनी में पॉलिसी कर दिया कि सारे लोगों का इंश्योरेंस होगा। एट द स्टेज जिस लेवल पे हम थे, हमने वो सोचना चालू किया, और चेतन जी भी वही स्टेज पे है, वो भी अपने टीम के लिए सोचते। तो दैट वाज वन इंसेप्शन। फिर जिस दिन हमारे पास इनकम टैक्स का सर्च हुआ था,
4 दिन के बाद मैंने ऑफिस चालू किया। मैं बोला आज के बाद जितने भी लोग हैं इनके बच्चों की एजुकेशन का जिम्मेदारी भी हम लेंगे। ये ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों से ही हमारे को इनपुट्स आते हैं कि ये हमारे लाइफ के चैलेंजेस हैं। तो मैं अपने टीम का उस तरीके से जो टीम लीडर्स हैं उनसे डिस्कस करता हूँ, उनके लाइफ में क्या चैलेंजेस है उसके ऊपर वर्क करता हूँ और वो कंपनी को चलाते हैं। तो ये हो गया डायरेक्टर्स के लिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पे जो भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को मैं वापस एक ही बात दोहराना चाहता हूँ, यू आर सो फॉर्चुनेट एंड लकी दैट यू आर अ टीम ऑफ फॉरबे कंपनी ओवर हियर। अभी चेतन जी के इनपुट से ही आए थे, हमारे स्टेटमेंट प्रोजेक्ट में बेसमेंट में बीम्स थे, तो मैंने इनको बोला यार ये बीम में ना चेतन जी बहुत गंदा दिखता है, क्योंकि जब मैं गाड़ी लेके जाता हूँ तो ऐसे 200 पाइप्स एक लाइन में दिख रहे हैं। तो उन्होंने ही आइडिया दिया कि हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, नहीं दिखाई देगा। ये क्यों आया? क्योंकि इन्होंने एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ाया कि आपकी लाइफ के लिए ध्यान दे रहे हैं। आपकी टीम से एक दूसरा स्टेप आया कि चलो सर हम कस्टमर की लाइफ बेटर करेंगे। ये 2 जुगड़बंदी करते रहेंगे और लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करोगे कुछ न्यू करने का, ऑटोमेटिकली ये लोग आपकी लाइफ का ध्यान रखेंगे, ये आपकी फैमिली का ध्यान रखेंगे और आप लोग इस कंपनी का ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे। इट इज़ अ म्यूचुअल सपोर्ट टू ईच अदर। तो इस तरीके से आपने जैसे बोला, तो मैं कंपनी में जैसे हम 4 लोग हैं, तो मेरा थॉट प्रोसेस यही होता है कि मैं मेरे टीम का ध्यान कैसे रखूँ। नाउ टीम डजंट स्टार्ट विद पीपल सिटिंग ओवर हियर, टीम स्टार्ट्स विद कि मेरा लेबर कैसा है, मेरा लेबर जब गाड़ी पे आ रहा है वो हेलमेट पहन के आ रहा है क्या नहीं, उसका इंश्योरेंस किया हुआ है कि नहीं, वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट है क्या नहीं। उसके बाद मैंने सप्लायर्स वेंडर्स का बताया, फिर लास्ट में मेरे कस्टमर्स भी वो यूज़ करने में सेटिस्फाइड है कि नहीं। 6 मंथ्स के बाद आपका बी फॉर्म रेगुलरली आपकी तरफ से अपडेट जा रहा है। देखो वो नहीं करना चाहता, वो उसको लुकआउट है। जब आप ये काम करते रहोगे, चेतन जी बैठे हैं आपकी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, यू हैव टू शो द रिजल्ट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। एब्सोल्युटली। एक सिर्फ थॉट आ रहा है सोच में, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ जब काम करता हूँ तब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अच्छे लोग हैं, ये भी बिल्डर भी अच्छा आदमी है, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर भी अच्छा आदमी है, और मैं टीम के साथ डील करता हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि ये भी अच्छे लोग हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इनसे बात करता हूँ तो ऐसा एक प्रतीत होता है कि ये दोनों टेबल के अक्रॉस बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर वर्सेस टीम। एंटरप्रेन्योर को उससे कुछ चाहिए जो उसको देना नहीं है, इनको इनसे कुछ चाहिए जो इनको देना नहीं है। ये रिलेशनशिप जो बन जाती है ना, वहाँ पे जनरली कंपनी इंस्टॉल हो जाती है। अपनी लड़ाई बाहर होनी चाहिए थी, अपनी लड़ाई अंदर हो जाती है, ठीक है। और जब तक हम अंदर लड़ते हैं दोनों ग्रो नहीं कर पाते, ना वो ग्रो कर पाते हैं क्योंकि वो रोक रोक के देते हैं, ठीक है, दे कैन सरेंडर बट दे डोंट, और हम भी नहीं दे पाते क्योंकि अपने कोई मज़ा नहीं आता। बट ये एक बार शिफ्ट हो जाता है ना, जहाँ पे किसी भी कारण से कैसे भी पता नहीं, लेकिन अगर वो शिफ्ट हो जाता है और दोनों टेबल के एक तरफ आ जाते हैं, उस कंपनी को कोई रोक नहीं पाता, ठीक है। मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा 1-2 मिनट के लिए आप सबके साथ कि ये शिफ्ट कैसे किया जाए, कैसे उनको खोला जाए, छोड़ा जाए, और कैसे अपने आप को भी उसके लिए तैयार किया जाए। दोनों टेबल के एक तरफ कैसे आए। इफ़ यू नो व्हाट आई एम एनीबॉडी। आई वुड स्टार्ट ऑन दिस। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सुबह उठते हुए ना, मतलब हम बोलने के लिए बहुत अच्छा है, बट एक अपने फैमिली मेम्बर को एक अच्छा स्माइल तो दीजिए। स्टार्ट तो वहाँ से कीजिए। आपके मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे ना, तो सब ये शिफ्ट ऑटोमेटिकली होगा। मैं कल ही एक 84 इयर्स के अंकल से जो जुनून से वो गाना गा रहे थे, मैं उनसे सुन रहा था, तो वो जुनून तो था गाना गाने का, बट उसमें वर्ड्स जो थे ना कि अगर आप दोस्ती रखोगे पुलिस वालों से तो हमेशा आप गुनाहगार की बातें करोगे, अगर आप दोस्ती रखोगे डॉक्टर के साथ तो हमेशा दवाइयों की बातें करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, आप दोस्ती रखिए पॉजिटिव एटीट्यूड से। आप दोस्ती रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ। शायद 5 साल के बाद लगेगा ये मैच्योरिटी कम थी, उस टाइम जो दिमाग आएगा वो करेंगे। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड और रोज़ ये रखेंगे कि मैं इस बिज़नेस में, मैं इस प्रोफेशन में अच्छा कर रहा हूँ, ये शिफ्ट ऑटोमेटिक आएगा। ये अंदर से आता है, ये बाहर से कोई प्रोफेशन से नहीं आता है। थैंक यू। ये जो हम सोचते हैं कि मतलब एम्प्लॉय एक तरफ और एम्प्लॉयर एक तरफ, वो एक्चुअली आई बिलीव इट्स मिस्टेक दैट इज बीइंग इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉयर बाय नॉट सेटिंग द राइट कल्चर। हमको टीम को ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि आप जो भी करेंगे हम उसमें आपके साथ खड़े हैं, एंड वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये आपको एक्शन में लाना पड़ेगा इन द लेटर एंड स्पिरिट।
So like what we do, we have designed a lot of policies where people don't feel to leave enrich. And स्पेशली जो हमारा टॉप लीडरशिप है वो काफ़ी समय से है. हमारा जो एट्रिशन होता है वो लोअर लेवल पे होता है एंड बाकी ऊपर का लेवल काफ़ी इंटैक्ट है. तो जैसे हमने एक पॉलिसी बनाया हुआ KME पॉलिसी, तो हमने उनकी ग्रोथ प्लान को सेट किया हुआ है फॉर नेक्स्ट 5 years. हमारा कंपनी का एक मेजर विजन है 2030 तक क्या करना है, एंड वो 2030 तक करने के लिए जो मेजर लीडर्स है जिनका हमको लगता है कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके लिए हमने एक अलग पॉलिसी बनाई है कि मैनेजरल एम्प्लॉय पॉलिसी, जिसमें उनको क्या मिलने वाला है, ईयर ऑन ईयर क्या मिलने वाला है, व्हाट विल बी देयर फाइनेंशियल ग्रोथ, व्हाट विल देयर पर्सनल ग्रोथ, हाउ विल बी द ग्रो इन स्किल सेट, वो सब उसमें डिफाइन किया हुआ है. सेम ये हो गया टॉप लेवल के लिए. मिडिल लेवल के लिए हमने एक अलग पॉलिसी बना रखी है, हाइपर्ट पॉलिसी, जहाँ पे जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए हमने एक अलग बेनिफिट्स बना रखे हैं, जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स, देन उनका ग्रोथ बेनिफिट्स, फैमिली बेनिफिट्स, ये आ रखा है. तो करना सब चाहते हैं, उसको अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम करें तो ये जो गैप है वो कभी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम करना चाहते हैं बट हम वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. अगर आप उसको प्रॉपर पॉलिसी और प्रोसेस में लेके आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली होते जाएगा. एंड दैट इज़ वेयर द वर्ड ऑफ माउथ विद इन द टीम, जैसे भी नरेश भाई बता रहे थे, वो चेंज हो जाएगा. तो अपने आप जब पूरी टीम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेगी ना, तो फिर आपको वो देखने की जरूरत नहीं है. देन both will be on one table and there will be fighting the forces which are outside, not inside. वो बहुत ज़रूरी है. तो हमको जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको प्रोसेसेस में, पॉलिसी में लाना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एंड देन इट शुड बी स्टार्टेड. तो टीम को समझ में आ जाएगा. आज मैं एक बात बताता हूँ, चाहे ये टीम हो, चाहे एनरिच का टीम हो, चाहे इनका टीम हो, चाहे टीम हो, हर लोग आ क्यों रहे हैं? बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू गिव देयर बेस्ट. बट वो बेस्ट लेने के लिए हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम सोचते हैं टाइम के बारे में, 9:30 पे आना चाहिए, 6:30 पे जाना चाहिए. दैट शुड नॉट बी द पर्पस. हमें ये देखना चाहिए कि उनकी एनर्जी को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर रखें. तो वो जब यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो हमारी गलती है, इनका गलती नहीं है. दे आर कमिंग हेयर टू गिव देयर बेस्ट. वी शुड क्रिएट अ कल्चर वेयर दे कैन गिव देयर बेस्ट. अगर वो हो जाएगा तो बोथ विल बी ऑन वन साइड. दैट्स माई पर्सपेक्टिव ऑन दिस. पहली चीज़ तो ये समझना कि ये जिम्मेदारी अपनी है, ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड देन रेस्ट विल फॉलो. बट जब तक हम ये समझ रहे हैं कि उनका काम है, उनकी प्रॉब्लम है, मैंने पैसा दिया है, उसको काम करना चाहिए, तो अपेरेंटली हम टेबल के अक्रॉस ही बैठे रह जाएंगे. तो वो भी वही समझ रहे हैं कि ये इनकी प्रॉब्लम है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. मैं इसमें एक ऐड करूँगा, जैसे मैं आपको एक सजेशंस दूंगा कि आपके टीम में किसी को ज़रूरत हो ना, उसको हेल्प करके देखिए. उसका बेनिफिट ये नहीं है कि आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके वजह से आपके आजू बाजू का वायुमंडल इतना पॉजिटिव हो जाएगा और आपके साथ जो लोग काम करेंगे ना, आपको वो एक घर जैसा लगेगा. मेरे साथ एक एग्जाम्पल हो, हमारे लीगल में एक स्वाति मैडम है, अचानक उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ. तो मेरी वाइफ का बहुत कैंसर पेशेंट्स की तरफ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है. तो वो उसने फर्स्ट 2 months क्या किया, उसके घर पे फ्रूट्स भेजना, ये सब किया. तो वो जब वो पॉजिटिव एटीट्यूड मेरी टीम ने देखने लगा, एवरी ऑल्टरनेट मतलब एक वीक में 2 बार हमारे ऑफिस से जितनी भी लेडीज़ है ना, वो लेडी के घर पे 2 घंटे जाके आफ्टर ऑफिस आवर जाके बैठते हैं, बातें करते हैं. अभी इससे उस लेडी ने पूरा उसका कैंसर से ओवरकम किया. शी इज़ ऑन द फाइनल टू कम आउट ऑफ इट. सो आप मुझे बताओ, सिर्फ हम प्रोफेशन के लिए आए हैं? Isn't it? This is more worth than it. I'll just add proudly कि चेतन जी और मेरा नेचर, हमारे लिए पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, हमारे को इस फैमिली के साथ मरते दम तक साथ में रहना ये उद्देश्य है. तो आप भी प्लीज़ उसको थोड़ा अडॉप्ट कीजिए. ट्रू. सो हमारे कंपनी में जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिविलेटाइज कैसे करें, बिलोंगिंगनेस कैसे लेके आए. तो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम है सिर्फ जो मेरे तक की प्रॉब्लम है वो मेरे हाथ तक नहीं रखी, मैंने कंट्रीब्यूट किया उनकी प्रॉब्लम, जैसे सर ने बताया, एंड दे हैव बेटर एग्जांपल्स. उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है, टेबल पे रखा, एंड कैसे कलेक्टिवली उसको सपोर्ट किया जाए, कैसे कलेक्टिवली सॉल्व किया जाए, कैसे सबका माइंडसेट उसमें आए, हर जन अपना ओपिनियन दे और ट्राई एंड एरर करते करते उसको सॉल्व करे. तो एक बिलोंगिंगनेस आ जाता है कि हाँ, ये कंपनी एक टुगेदर है, टीम है, साथ में काम करिए, मैं कोई भी प्रॉब्लम में अकेला नहीं हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा और मेरे पास टीम है, मेरे सर है जो सपोर्ट करेंगे. तो उस तरीके से वो कल्चर डेवलप किया, एंड उससे बिलोंगिंगनेस आ गई, ओनरशिप आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और गट्स आ गए.
अवेयर हो गए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, टीम स्टार्टेड थिंकिंग मैच्योर्डली, और मैच्योरिटी बढ़ती गई ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मैच्योरिटी बढ़ती गई, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती गई, आपको बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको चैलेंजेस लेने के लिए और ऑर्डर्स उठाने चालू किए, और डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट सोल्यूशंस लगाने चालू किए, एंड दे इटसेल्फ स्टार्टेड फीलिंग दैट कि आई हैव दैट ओनरशिप, आई विल कंक्लूड और आई विल डिलीवर इन टाइम। तो उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हुई कि इट इज़ नो मोर जस्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, इट इज़ ऑलवेज नाउ बिंगिंग दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अलाइंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। सो आई थिंक जो हम एक निष्कर्ष पे आ रहे हैं वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी आगे जाएगी, वो पॉसिबिलिटी हम कितना रिस्क ले सकते हैं उसके ऊपर है। तो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है कि हम कितना आगे जाएंगे। हम कितना रिस्क ले सकते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस कितना है अपनी टीम के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उनके ऊपर विश्वास रखते हैं कि वो रिस्क को मिटिगेट या जस्टिफाई कर पाएंगे। हम कितना कॉन्फिडेंस उनके ऊपर रखते हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में अब इसको फ्रेम करना चाहूँगा। मान लीजिए आप ही की टीम है, आप इनसे क्या चाहते हो, और आप अगर चेतन की जगह हो तो आप क्या कमिट करते हो। हाउ डू यू बिल्ड दिस कॉन्फिडेंस, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम एंड व्हाट यू आर ऑफरिंग। टू आंसर योर क्वेश्चन इन वन वर्ड, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जो आपका ओनर माइंडसेट है, वो ही अगर आप टीम का ओनर माइंडसेट आप क्रिएट कर सकते हो तो रिजल्ट्स कैन बी मच 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 बेटर। एंड वो माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। कुछ चीज़ ऐसी भी करनी पड़ती है जो कभी कभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए सही नहीं लगेंगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए सही है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, लास्ट 15 ईयर्स में एनरिच के प्लेटफॉर्म में वी हैव क्रिएटेड मोर देन 4 डजन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंड मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड बोल लीजिए, देन ही जॉइंड मी एज माई BD हेड। 13 साल मेरे साथ काम किया। 2024 में ही कम टू मी एंड ही सेड कि मेरे को अभी चेंज करना है। एंड आई सेड हिम व्हाट यू वांट टू डू। देन ही सेड कि मुझे आपको देख के मतलब काफ़ी इंस्पिरेशन हुआ, एंड मेरा का थॉट था कि आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस। नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग हमको लगेगा कि कोई आदमी अपने साथ 13 साल से आपका एकदम क्लोज है, डियर, सब कुछ कर रहा है, आप क्या करोगे, उसको रजिस्ट करोगे। देन आई टोल्ड हिम यू डू इट, बट फर्स्ट एक का प्रॉपर बिजनेस प्लान, उसके ऊपर सोचो 6 महीना 4 महीना जब भी आपको लगता है, एंड यू डू इट विद ओनली वन थॉट दैट देयर इज नो प्लान बी। वापस आके कभी ये मत सोचना अगर बिजनेस चालू कर रहे हो कि मैं एनरिच में जाके जॉब चालू कर लूंगा या कहीं और जाके जॉब चालू कर लूंगा। एंड यू वोंट बिलीव, उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन से उसने 4-5 महीने वो जो बिजनेस चालू करने वाला था उसकी इतनी प्रॉब्लम्स आके मुझसे डिस्कस की, एंड जो भी चीज़ उसको प्रॉब्लम आ रही थी, एंड आई यूज्ड टू गाइड हिम व्हाटएवर आई कैन। एंड वो जो एक उस कन्वर्सेशन से जो बाकी टीम में लोग थे उनको जो मैसेज गया कि यार यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि किसी ने पेपर डाल दिया तो आज से वो हमारा दुश्मन है। नॉर्मली क्या होता है, कोई पेपर डाल देता है तो हम सोचते हैं कि ये भी एम्प्लॉय हमारा दुश्मन हो गया। हम लोग हमारे यहाँ पे एक कल्चर है कि हम लोग फेयरवेल भी है ना बहुत खुशी से देते हैं, जितना अच्छी तरह से वेलकम करते हैं, तो फेयरवेल भी उतना अच्छी तरीके से देते हैं ताकि जो जा रहा है ना वो अपने ऐसे खुश हो गए। अपने परिवार का हिस्सा था, अभी वो किसी दूसरे परिवार में जा रहा है, बट वो जाने के बाद में हमारे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो वापस आके ज्वाइन करते हैं। तो ये हमको ओनर माइंडसेट जो है ना ये टीम में लाना पड़ेगा। तो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल कि आप कैसे उसको ला सकते हैं। यू शुड क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज वेकर पीपल कैन वर्क लाइक ओनर। उनको आप उनके BU का, उनका जो बिजनेस यूनिट है उसका हेड बना दीजिए, उसका P&L का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, या जो भी वो काम करते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। दे विल डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड वंस दैट इज डन देन थिंग्स कैन मूव अराउंड। सो जब आप सुजलॉन में थे तो उधर कुछ ऐसा होता था जिससे आप ऐसे बने जैसे आप हो, या ये आपकी पेडिग्री थी क्योंकि मारवाड़ी फैमिली आसपास देखा होगा, चाचा मामा था, वो सब बिजनेस में अपने हार्ड टाइम्स थे उस टाइम पे। तो मैंने जब छोड़ा तब तो सुजलॉन वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज। स्टार्ट ही हुआ था, 1.5-2 साल पहले हुए थे, बट आई वुड से दिस इज इन अ पेडिग्री ऑफ माय genes that I have, and especially my father, because I have seen him whole of his life doing many things for others. तो मुझे जब भी मैं कुछ भी डिसीजन आज भी लेता हूँ तो मेरा कोर फोकस यही रहता है कि मेरी टीम के लिए क्या होने वाला है, मतलब व्हाट कैन आई डू बेस्ट फॉर माई टीम, इस डिसीजन से क्या होगा। तो
वो अगर हम फोकस पे रखते हैं तो वो अपने आप चीज़ें चेंज हो जाती है। तो हम एक वाइटल केयर पॉलिसी लेके आए जहाँ पे इस तरह की अगर कोई बीमारी होगी तो कंपनी उस सिचुएशन में क्या करेगी। तो हमने जैसे उसमें रखा हुआ है कि टिल 3 months दे विल बी स्टिल गेटिंग विदाउट कमिंग टू ऑफिस 75% ऑफ पे, 6 months तक 50% ऑफ पे, और उनका हम ट्रीटमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर करी हुई है। तो ऐसी जब चीज़ें होंगी ना तो आई मीन दैट मेक्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द टीम। एब्सोल्युटली। आप से वही सवाल है, जस्ट टू क्लोजिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन शॉर्ट वर्ड्स, आप टीम से क्या कहना चाहोगे, क्या एक्सपेक्ट करोगे, और आप चेतन से क्या एक्सपेक्ट करोगे अगर आप चेतन हो तो? मतलब Right. So- what would you do and what you expect? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पूरा ओपन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मैंने तो बोला था वैसा ही करना था, और जब फेल हो गया, पास हो गया, तो फिर वो बोलेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं वैसा करना था। तो वो कल्चर में रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। सो कीप द प्लेटफॉर्म ओपन। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने प्लेटफॉर्म इतना ओपन कर दिया है जिसका अपॉर्चुनिटीज़ कन्वर्टिंग इनटू बिजनेस, राइट। तो हम लोग रोबोटिक्स चालू किए 3 साल पहले, जब मेरे 4 इंटर्न आए थे। नाउ देयर 4 इंटर्न्स आर को-फाउंडर्स विथ मी। मैं उनको डायरेक्शन दे रहा हूँ, इंक्यूबेशन कर रहा हूँ। हमने 4 पेटेंट्स रजिस्टर किए इन दिस 1.5 ईयर। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप जब रखोगे सामने, ऑटोमेटिकली चीज़ें इतने सॉल्वेबल एंड मल्टीपल ऑप्शंस एंड मेथड्स मिलेंगे आपको, जिससे कंपनी की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ दोनों एक साथ मल्टीफोल्ड्स में जाएगी। इस तरीके से इंडिया विल बिकम मोर डेवलपिंग नेशन। जैसे सर ने राइटली से, चेतन जी आए एंड मैं जिस तरीके से आपको पहचानता हूँ, आप हमेशा इनिशिएटिव टेकर ही हो। सो मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि अपने ही टीम में से जिन लोगों के अंदर कैपेबिलिटी कुछ कर दिखाने की, उनको चांस दीजिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। दे विल हेल्प यू टू द मैक्स। मैं मेरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। मेरा ड्राइवर था अजिंक्य शिंदे, आई थिंक मैनी ऑफ यू नो हिम। सर जी 2012-13 में ही वॉज एट अ सैलरी ऑफ 8,000। टुडे हिज सैलरी इज़ 2 लाख रुपीज़, and from the driver he has become today a licensing head of the company। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि एवरी ईयर आप अपने आप को सिर्फ 10% इंक्रीमेंट भी लिखेंगे ना, बहुत हो गया। वो 10% यहाँ पे अगर मेरे 100 भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, वो 10% छोड़ो, आप 2% भी लेके आओगे ना, नेक्स्ट 10 साल में वॉरवे वुड बी इंडियाज़ नंबर 1 कंपनी। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्ड होती है तो हम रिस्क बेटर ले पाते हैं, और हम रिस्क एक्चुअली वो रिस्क नहीं रहता, फिर जो टारगेट्स है वो अचीव हो पाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है वो बेटर अपॉर्चुनिटी या चैलेंजेस टीम की तरफ थ्रो कर पाती है। टीम अगर उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करती है, तो डिलीवर कर पाती है। तो इससे साइकिल, कंपनी ग्रो करेगी और चैलेंजेस आएंगे, टीम उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगी, टीम ग्रो कर पाएगी, टीम ग्रो कर पाएगी, टीम भी कमा पाएगी। कंपनी ग्रो करेगी, चैलेंजेस आएंगे, टीम एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, रेजिस्टेंस आएगा। एब्सोल्युटली, है ना? वी हैव सो मेनी टेक बैक्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि दोनों को टेबल के एक तरफ आना जरूरी है, एंड देन वी कैन विन द बैटल। पैनल डिस्कशन हमारे लिए, टीम के लिए बहुत जरूरी था। और अगर टोटल एक्सपीरियंस इधर का एक पैनल का देखा जाए तो फिर हम 50 साल आगे गए, तो एक आदमी 100 बुक के बराबर रहते हैं। तो आज 400 बुक पढ़ने जैसा हमारा एक्सपीरियंस आज, तो आज बहुत सारी चीजें हमने सर सीखी। अंदर की फायर होनी चाहिए टीम में भी, और हमको अगर ग्रोथ करने तो एक टेबल पे आना पड़ेगा। और ये सब चीजें जिन्होंने कैपेसिटी बिल्ड की है, और मैं वॉरवे टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप सब आए, थैंक यू सो मच सर।